go off video and continue. Okay. Jaya, you can, where is the ISL interpreter? So, just give us one tiny minute, Ayushi, for the ISL interpreter. Good morning. Oh, we have Deepa here, right? Yes. Hi, Deepa. Good morning. Morning. Jaya, can you put spotlight on Ayushi and Deepa so that it's easier for everyone? And I want you to record that mode of video. Are you able to do that? Guys, can you start? Jaya, can you put me and Deepa in spotlight? Yeah, already pending. Okay. I'm not able to see that. I don't know. We are not able to see that, Jaya. So basically, you go to Ayushi's video and say on the right there, you'll see 3 dots and you have to say Yeah. spotlight. Yes. And then also add Deepa here. Wonderful. All set. All right. Hi, everyone. Thank you for joining us on a Sunday morning in this exciting workshop where we are going to understand our emotions, how to take advantage of our emotions, and building the skills, right skills according to our emotions and taking care of our mental health, using that in our personal and professional life. We have an excellent life coach here with us, Ayushi, and I'm just going to hand it over to her. And I'm going to request all of you to stay on mute and follow the house rules, please. You can turn on your videos because it's always nice for the coach to look at your faces, see your expressions. Sorry, Deepa, I'm not going too fast, am I? Sorry. Okay. And we also have Deepa to take care of the sign language interpretation. And so turn on your cameras if you don't have a bandwidth problem. Let yourself interact freely with this group. And I think there will also be a feedback form which will be shared during the session. So do take time out for that. And that's it. Please keep your questions handy. And thank you, Ayushi, once again. Please, over to you. Thank you. Thank you so much. I would request कि अगर आप सब अपने कैमरास ऑन कर ले तो मैं आपकी शक्लें भी देख सकती हूँ जैसे आप मेरी देख सकते हैं. That will be beautiful. और please tell me कि आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स is that okay? और would you prefer a language? Please let me know ताकि आज की हमारी ये journey बहुत easy रहे. Okay. I'm comfortable with English Hindi. and Hindi is okay. Hindi is okay with everybody? Yes. Okay. तो मैं मोस्टली हिंदी में बोलूंगी जो वर्ड्स मेरे को हिंदी में नहीं आते वो मैं इंग्लिश में बोलूंगी. ऑल राइट. तो जैसा अभी मुझे जैसा आपको यहाँ पे पता चला, यहाँ पे हम एक इमोशंस के बारे में वर्कशॉप करने वाले हैं. इससे पहले कि मैं उसके बारे में बात करना शुरू करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. आई एम वेरी हैप्पी टुडे दैट आई एम एबल टू डू दिस फॉर यू. Thank you so much कि आपने मुझे ये मौका दिया that you came on a Sunday morning to attend this. And thank you so much, Deepa, for interpreting everything that I'm saying. Thank you so much. I'm really positively overwhelmed and grateful. All right. तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ कुछ भी बताना, मुझे आप सबसे पूछना है एंड प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ और टाइप इन द चैट जैसा भी आपको सही लगे. आज संडे मॉर्निंग 26 में कैसा फील कर रहे हैं आप? व्हाट इज योर इमोशन? जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट. क्या इमोशन है, क्या फील कर रहे हैं आप?
Hello. So, hi, my name is Rachit. If I have to define my emotion, कूलर बंद कर Okay, people who are not talking, please आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए. कोई और अगर बात कर रहा है उसको बात करने दीजिए और फिर अपने आप को अनम्यूट करके बात करिए. ठीक है? योगेश, हाँ, थैंक यू. हाँ रचित, प्लीज गो अहेड. yeah. So, to be honest, it's just that my mom is going through her breast cancer issue. So I just visited her in the hospital and I came back. And even my medical dramas are going on. So I'm in a very different state of mind than the usual that it should be. Thank you, Rachit. Thank you for sharing. Thank you. Anyone else? कैसा फील कर रहे हैं आज आप? आज सुबह? How are you feeling? हेलो मैम हाय Hi. यस सच बोलूं तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है मतलब ठीक ठीक तो है लेकिन ठीक ठीक तो नहीं लग रहा है जैसे कि गौतम बुद्ध बोलते थे कि ये दुनिया दुखालय है लेकिन इससे निजात पा जा सकता है तो ठीक वही बात है टाइम बहुत हो चुका है और सोल्यूशन कुछ भी नहीं मिल रहा है लेकिन ठीक तो नहीं है बात तो ठीक नहीं है और ये मेरी बात नहीं शायद सभी की यही बात है कि खुश तो नहीं है लोग लेकिन कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है और इसे सॉल्यूशन निकालना जरूरी है हम्म, हाँ मैं समझ सकती हूँ. Thank you, योगेश. यस मैम हेलो मैम. मैं Hello, विशाल sir. हूँ. आवाज आ रही है? हाँ जी. हाँ मैम. मैं तो अभी थोड़ा मतलब पॉजिटिव हो रहा हूँ धीरे धीरे. कुछ दिन पहले मतलब 2 मंथ पहले मेरा डिवोर्स हो गया था तो इसी वजह से मैं बहुत परेशान. और एक्चुअली मेरे साथ में चीटिंग किया गया है कि मतलब जो आगे वाली जिसने मुझे शादी करी थी कि भाई, हाँ शादी कर ली 2 मंथ पहले. एंगेजमेंट 2 ईयर पहले हुई थी लेकिन उसके बाद में रिलेशन में थे मतलब 2 साल उसके बाद में शादी की और फिर बाद में पैसा वैसा लेके चीटिंग कर लिया उसने. और एक्चुअली उसने सिर्फ इसलिए किया था कि मैं यूपीएससी एग्जाम मेरा निकला था बट कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से अभी रुक गया है. उसका कोर्ट में केस भी चल रहा है शायद हो जाएगा अभी नेक्स्ट ईयर तक. तो वही कि उसको लगा कि भाई अभी जॉब नहीं है इसके पास में अब तो मैं छोड़ देती हूँ ना. और थर्ड पर्सन के साथ में जाके और ऐसा कुछ हो गया है साथ में. तो मैं अभी साइकोलॉजिस्ट से भी कुछ ट्रीटमेंट ले रहा हूँ. तो धीरे धीरे कर रहा हूँ उससे. और अभी मैं हैदराबाद में रहता हूँ नेशनल जियोग्राफी कर रहा हूँ. तो थोड़ा तकलीफ तो है लेकिन निकल जाऊंगा मैं इसके साथ में. I hope आप उस तकलीफ में से निकल जाएं. Thank you so much, विशाल, for sharing. थैंक यू मैम. Anyone else wants to share? कैसा फील कर रहे हैं आज आप? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? हाय आयुषी. सो दिस इज संडे मॉर्निंग. आज छुट्टी है, थोड़ा सा रिलैक्स करने का मूड है कि हाँ. एंड जनरली आई वोक अप वेरी लेट Sunday morning, but because of the session, and I, generally take a lot of interest when I got to know about you that you are an NLP expert, and so I am very curious to know and about these feelings and all. So yeah, this is my current feeling. Thank you, Neha. Thank you for sharing. Hey, hi Ayushi, Vijaya this side. Can you hear me? Hi, Vijaya. Yeah, I'm also like feeling pretty good today, but kind of I'm stuck in career-related decision. So yeah, very confused, feeling very confused right now. Like I'm working, I'm good at that, but my heart is somewhere else. So I'm also feeling like very stuck while doing the work and like whether should I go for the next step or not. So it's going like that. Okay. Understandable. Thank you, Vijaya. और कोई है यहाँ पे जिसको शेयर करना है? हाय मैम. हम्म. जी मेरा नाम अभिजीत घोष है. मैं कलकत्ता से हूँ हम्म. और मैं फिलहाल में जॉब कर रहा हूँ
मेरा लाइफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं कान में कम सुनाई देता है। आई एम जस्ट हार्ड ऑफ हियरिंग। ओके। तो मुझे काम से बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइन में ऊपर में काम करता हूँ। हम्म। तो मैं चाहता, क्योंकि बाकी लोग सब अलग है, क्योंकि जब मैं ऑफिस में काम करता तो बहुत ही सुनने में दिक्कत होता है, क्योंकि मैं हेयरिंग मशीन पहन के ही जाता हूँ। लेकिन क्या है कि जब बात करते हैं ना कम्युनिकेशन में, तो थोड़ा सा मुझे बहुत मतलब समझने, बहुत अंडरस्टैंडिंग टाइम लगता है। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि पता नहीं कितना कितना मतलब लाइफ में बहुत ही सफर कर रहा हूँ वो चीज़ के लिए। हम्म। तो मैं क्योंकि सबसे अलग है, बहुत ही हर्ट होता है बात को लेके, क्योंकि ऑफिस में आसपास में बहुत हैरस भी होता है। क्योंकि हम्म। एक बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे ही करते करते बहुत ही बुरा लग जाता है इस चीज को लेके मैं बहुत जल्दी। हम्म। और मैं जॉब में बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि वो हार्ड ऑफ हियरिंग की वजह से हम्म। मुझे सब काम आता है, लेकिन बहुत ही ये इश्यूज हो रहा है क्योंकि मैं कम्युनिकेशन से समझ नहीं पा रहा हूँ। हम्म। तो बस ये मेरा बहुत ही प्रॉब्लम है, हम्म। इमोशन है। That's it. I understand, Abhijit. Thank you so much for sharing. Thank you. गुड मॉर्निंग Good morning. मैम। मैं पूजा घोष हूँ। मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, लेट ब्लाइंड हूँ मैम। मैम मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है मैम, मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है मैम, बट मैम थर्ड ईयर कंप्लीट करने के टाइम इनाविल इंडिया में डीएच कोर्स 1 ईयर के लिए मैं वहाँ पे चली गया था, तो इसीलिए मैम मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था। बाद में मैम मुझे पता चला है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है 10 साल के लिए, इसलिए मैम मैं वहाँ पे छोड़कर मैं शारुति के साथ ज्वाइन किया है। बट मैम मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो रही है। इवन अभी मैं जब हम्म। ग्रेजुएशन करने के स्टार्ट किया है मैम, तो मुझे फिर भी बोल रही है कि 2 इयर्स लगेगा, और मैं मैम दूसरा स्टेट में शादी कर लिया है। तो मैम ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैम कभी तो मैं रुक नहीं जाना चाहती हूँ मैम, क्योंकि मैम मैं ब्लाइंड होने के बाद भी मैम कभी भी नहीं रुका है मैम। तो इसलिए मैं म्यूजिक के लेकर मैं करूँगी, या मैम कुछ हैंड वर्क सीख रही है मैम, तो हम्म। कुछ मदद मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा मैम। थैंक यू। हम्म। Thank you, Pooja. Thank you for sharing. Hmm. Okay. Looks like अभी और कोई नहीं बोल रहा है. Mukhed has shared on chat. Thank you, Mukhed, for sharing. I completely understand कि आप सबके different challenges हैं. हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है. और पता है, आई नो कि मैं इस साइड बैठी हूँ और मैं वर्कशॉप डिलीवर कर रही हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी भी लाइफ अभी बहुत कुछ अच्छी नहीं चल रही है. जस्ट टू शेयर माई स्टोरी ऑल्सो विथ यू. जैसा आपने बताया, आई वॉज बॉर्न विथ क्लिनिकल एंग्जाइटी. तो बचपन में भी और अर्ली 20s में भी बहुत बहुत तकलीफ होती थी मुझे एंग्जाइटी अटैक्स की वजह से, और जिस वजह से बहुत बहुत स्ट्रगल किया मैंने काफ़ी साल. और मुझे काफी साल तक तो पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे विजुअल हेलुसिनेशंस होते थे. हार्ट हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती थी, और मुझे लगता था फिजिकली मेरे साथ कुछ तो हो रहा है, शायद मेरी तबीयत खराब हो गई है या नहीं. मुझे 6 महीने से ज्यादा लग गए ये समझने में कि ये एक्चुअली एंग्जाइटी है. और फिर उसके बाद कई साल लग गए उससे डील करने में, उससे आगे बढ़ने में. तो अभी भी कई बार अभी उतना उतना स्ट्रगल नहीं करती मैं जितना पहले करती थी, लेकिन अभी थोड़ा बेटर हो गया. लेकिन काफी साल लगे मुझे थेरेपी में और टूल्स यूज करते हुए यहाँ पहुंचने के लिए. तो इसीलिए मैं आज जो करती हूँ, मैं लोगों की जो मदद करती हूँ एज अ कोच, वो इसीलिए है क्योंकि मेरी जिंदगी में भी कई ऐसे
उतार चढ़ाव आए हैं, इतने स्ट्रगल्स आए हैं जिंदगी में, चाहे वो बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अगर मैं यहाँ तक पहुंच पाई, आज मैं अगर खुश फील कर सकती हूँ तो मैं दूसरों की भी मदद कर सकती हूँ, उनको वो खुशी हासिल कराने में किसी तरीके से। तो आज का वर्कशॉप का मेन एम ही मेरा यही है कि मैं आपको बता सकूं कि हम सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, दैट इज लाइफ, राइट? हम पैदा होते हैं और हम स्ट्रगल करते हैं और वो लाइफ है। लेकिन उन स्ट्रगल्स के बीच में भी कहीं ना कहीं हमारी खुशियां हैं और वो सब हमारे हाथ में, वो सारी खुशियां। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे पूछना चाहा कि आप कैसा फील कर रहे हैं आज। मैं कोई भी आज प्रेजेंटेशन या कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि आई एम श्योर आपने बहुत वर्कशॉप्स या क्लासेस अटेंड की होंगी जिसमें लोग आपको वही मेथड्स और वो सब बता रहे हैं। आज थोड़ा सा हम इंटरैक्टिव रखेंगे, मैं आपको जानना चाहती हूँ, आप मुझे जानिए, हम एक दूसरे को कहानियां बताएंगे और उससे समझेंगे कि हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है और हम उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बेटर चीजें कैसे पा सकते हैं जिंदगी में। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी आप सबने मुझे अपनी, और काफी लोगों ने मुझे अपनी स्टोरी बताई। सिर्फ एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो जिसको कहते हैं व्हील ऑफ इमोशंस। हम सब के 6 कोर इमोशंस होते हैं, मतलब बहुत सारे, वैसे तो हम बहुत कुछ फील करते हैं बट वो सारी फीलिंग्स आती हैं 6 इमोशंस से। अब मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, चैट में शेयर कर देती हूँ। Ayushi, I'm making you host. You can share your screen. ओके, मैंने वैसे चैट में भी शेयर कर दिया है व्हील ऑफ इमोशंस। तो व्हील ऑफ इमोशंस मैं आपको आज क्यों दे रही हूँ या क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने कोचिंग शुरू की थी, कोचिंग ट्रेनिंग शुरू की थी कोच बनने के लिए, तब जिस इंसान ने लाइफ कोचिंग को जन्म दिया था, जिन्होंने इस दुनिया में लाया उस चीज को, उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर हम सफिशिएंटली सेल्फ अवेयर हैं, मतलब अगर हम खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, खुद के इमोशंस को, खुद की तकलीफों को, तो हम उनको सेल्फ करेक्ट भी कर सकते हैं। हम वो राह भी ढूंढ सकते हैं जिससे हमारी जिंदगी बेटर हो पाए। तो उसकी शुरुआत होती है इमोशन से। अगर हम समझ पाए एग्जैक्टली हम क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं, बट हर बार हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है हमारे साथ। इसीलिए जो कोर इमोशंस हैं हमारे, वो हैं लव, फियर, एंगर, सैडनेस, सरप्राइज और जॉय। तो ये 6 कोर इमोशंस हैं हमारे, जिसमें से और भी बहुत सारी और आगे जाके फीलिंग्स निकल के आती हैं। तो अगर आप फियर फील कर रहे हैं तो उसमें आप स्कैर्ड फील कर सकते हैं, टेरिफाइड, इनसिक्योर, नर्वस, हॉरिफाइड। बहुत तरीके के फियर्स होते हैं जो हम फील करते हैं। जैसे मैं सच बताऊं तो मैं कल से बहुत नर्वस फील कर रही हूँ इस वर्कशॉप के बारे में। फियर नहीं फील करी, बट फियर का एक पार्ट होता है नर्वसनेस, कि क्या मैं आपको वो डिलीवर कर पाऊंगी जो आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सके। तो मैं नर्वस फील कर रही थी, तो आई वॉज एबल टू पिन पॉइंट कि क्या थी वो फीलिंग। अभी आई एम फीलिंग सेंटिमेंटल, दैट फॉल्स अंडर लव, क्योंकि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यहाँ पे होने के लिए, राइट? एंड आई एम ऑल्सो एबल टू फील पैशनेट अबाउट मैं जो करती हूँ उसके बारे में, राइट? तो ऐसे ये व्हील ऑफ इमोशंस आप कोशिश करें कि आप सेव कर लें, मैंने चैट पे भेज दिया है। आप अपने फैमिली मेंबर्स जिनके साथ आप रहते हैं, जो आपकी मदद करते हैं, उनको भी देंगे, ताकि आप लोग एटलीस्ट
जब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब अपने इमोशंस के बारे में किसी को बता रहे हैं, तो आप समझ पाएं कि एग्जैक्टली आप फील क्या कर रहे हैं। ओके जया, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। थैंक यू। तो ये चैट में भेजा है मैंने, तो जो लोग सेव कर सकते हैं वो सेव कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको आगे फॉरवर्ड भी कर सकूं किसी तरह, मेल पे या व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, हम सबकी जिंदगी में पेन होता है। वी ऑल गो थ्रू सम और द अदर फॉर्म ऑफ पेन, हार्ट ब्रेक एंड नेगेटिव इवेंट्स जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2020 में माय बिजनेस पार्टनर प्रोफेशनली चीटेड ऑन मी, और बहुत 3-4 महीने में बहुत पेन में थी। मुझे लगा मेरा बिजनेस मेरे हाथ से चला जाएगा, जो मैंने 3-4 साल लगा के बिल्ड किया था। ऐसे ही पेन बहुत सारे मेरी जिंदगी में आए हैं, आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी आते रहते हैं और आते रहेंगे। हम कभी भी पेन को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज समझ सकते हैं कि पेन तो आएगा, लेकिन सफरिंग इज अ चॉइस। उस पेन से हुई सफरिंग इज अ चॉइस। सफरिंग इज कॉज्ड बाय आवर ओन थॉट्स एंड थिंकिंग। कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है, आप कोशिश करिए ये ध्यान से समझने की कि जब भी कुछ नेगेटिव होता है, उसके बाद हम एक थिंकिंग के लूप में चले जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे होगा आगे। इस थिंकिंग के लूप के बाद निकल के आता है वो सफरिंग, जिसमें हम कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव इमोशन फील करते रहते हैं। तो सफरिंग कम्स फ्रॉम द वे वी थिंक। हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, इस इवेंट जो हमारे साथ सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसके बारे में, और हम उस सोच को लेके कि कितना समय तक बैठे रहते, कुछ नहीं करते उसके बारे में। तो दैट इज वेयर सफरिंग कम्स फ्रॉम। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो तो हम बिल्कुल ही सोचना बंद कर दें, लेकिन हम अपने आप को कैसे वो पावर दे सकते हैं कि वो थिंकिंग हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट करे इंस्टेड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इसके लिए एक हम बहुत सिंपल सा टूल सबसे पहले अभी प्रैक्टिस करेंगे साथ में। हम सबके पास कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ सफरिंग है, कुछ जॉयज हैं, सबके पास। हम सबकी जिंदगी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, लेकिन आपको पता है एक चीज है जो हम सबके पास है, हम सब जितने लोग हैं यहाँ पे सबके पास है, वो है हमारी ब्रेथ, हमारी सांसें। और मुझे याद है 2018 में, शायद 17 या 18 में, मुझे एक बहुत बुरा पैनिक अटैक हुआ था। मैं गाड़ी से ऑफिस जा रही थी और मेरी गाड़ी एक टैक्सी से टकरा गई थी, और उसके बाद मुझे बहुत बुरा एंजाइटी और पैनिक अटैक हुआ था, जिसके बाद मुझे मेरे एक दोस्त ने बिठा के समझाया, और उसने एक बहुत ही पावरफुल चीज बोली मुझे। उसने बोला, आयुषी अपनी सांस पे ध्यान दो, अपनी ब्रेथ पे ध्यान दो, क्योंकि जिस दिन तक हमारे पास ये ब्रेथ चल रही है उस दिन तक हम हैं, उस दिन तक हमारी खुशियां हैं और परेशानियां हैं। जिस दिन ये ब्रेथ नहीं है उस दिन क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसीलिए हमारे सारे सफरिंग, सारे पेन, सब चीज का एक सिंपल सॉल्यूशन जो आज के डेट में हमारे पास हमेशा रहेगा, वो है हमारी ब्रेथ। तो जब भी आप नेगेटिव इमोशंस फील करना शुरू करें, बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, बहुत कुछ बुरा सोच रहे हैं आप, दुख हो रहा है आपको, स्ट्रेस हो रहा है आपको, और आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहे। आपके आसपास अच्छी चीजें चल रही है, शायद आपके परिवार वाले कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ अच्छा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में वही दुख, वही सफरिंग चल रही है। वहां पे बहुत ही एम्पावरिंग चीज है अपने आप को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाना। क्योंकि अगर आप देखेंगे, हमारी सफरिंग आती है या तो हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या हमारे फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे होते हैं। तो जब हम अपने आप को प्रेजेंट में ले आते हैं, तब हम थोड़ा सा बेटर फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो है वो यही है, जो है वो इसी सेकंड जो चल रहा है वही है। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, कल क्या हुआ वो हम बदल नहीं सकते। इसीलिए अभी हम एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस करेंगे साथ में। आप अपना राइट हैंड लेंगे और अपने
चेस्ट पे रखेंगे और अपना लेफ्ट हैंड लेंगे और अपने टमी पे रखेंगे, अपने पेट पे रखेंगे। इसको कहते हैं सोमैटिक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, और इससे हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं या फिर अपने नेगेटिव इमोशंस को थोड़ा कम कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल, ये दोनों हाथ अपने यहाँ पे रखे। Ayushi, I'm sorry to interrupt you. Just one moment. For example, I'm an amputee, so I don't have my left hand. So That's all right. That's all right. You can choose just one hand, whichever hand you like, your right hand you have. Please keep that on your heart. That's all right. Thank you for letting me know, Rajit. आप अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखेंगे और सिंपली एक डीप ब्रेथ लेंगे अपनी नाक से। थोड़ी देर होल्ड करके उसको बाहर जाने देंगे। ऐसे अभी हम साथ में 5 बार करेंगे, ठीक है? कैन वी डू दिस 5 टाइम्स? Whenever, जब भी आपके लाइफ में कुछ भी नेगेटिव इमोशंस लूप में चल रहे हैं, सिर्फ ये करना है, आपको डीप ब्रेथ्स लेनी है और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है उन कुछ सेकंड्स के लिए। आप कम से कम 10 सांसें ऐसी लें जिसमें आप डीप, एकदम गहरी सांस लें, और ऐसी गहरी सांस लें जिसमें आपका पेट बाहर जाना चाहिए जब आप इनहेल कर रहे हैं। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तब आपका पेट बाहर जा रहा है, क्योंकि वो हमारा नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग है। हम जब स्ट्रेस में होते हैं या जब हम एंजाइटी फील कर रहे होते हैं तब हम उल्टा करने लग जाते हैं, और वो हमारे स्ट्रेस के लिए और बुरा होता है। तो क्यों हम यहाँ पे हाथ रख के कर रहे हैं ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग? क्योंकि हमें बस ये अपने आप को रेगुलेट करना है कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं हमारा पेट बाहर जा रहा है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब हमारा पेट वापस नॉर्मल जगह पे आ रहा है। दैट्स इट। ये हम क्यों करते हैं, इसका छोटा सा साइंस है। हमारे ब्रेथ में वो पावर है ताकि वो हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर सके। जो चीज हमें स्ट्रेस और फियर और ये सारी नेगेटिव इमोशंस फील कराता है, हमारे अंदर वो चीजें, हॉर्मोन्स फ्लो करता है, नर्वस सिस्टम हमारा वो रेगुलेट हो जाता है अगर हम सांसें ले लें कुछ गहरी। तो आप अपने आप को आज एक छोटा सा प्रॉमिस करिए कि जब भी, चाहे आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, 10 से 12 गहरी सांसें ले लें उस चीज को करने से पहले। इट इज माय गारंटी कि आप कम से कम 20-30% बेटर फील करने लग जाएंगे सिर्फ एक ये एक्टिविटी करने से। यहां से शुरू करें, और आपकी ब्रेथ हमेशा आपके साथ है, राइट? तो आप कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, ये एक प्रैक्टिस आप हमेशा कर सकते हैं। बहुत तरीके के ब्रेथ वर्क्स होते हैं, आपको अगर चाहिए तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं और भी तरीके के ब्रेथ वर्क्स, बट लेकिन आप यहां से शुरू करिए। सिर्फ यहां से शुरू करना ही बहुत है हमें अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा सेगमेंट है, विजुअलाइज करेंगे। जो लोग लिख सकते हैं, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, या ड्रॉ करना चाहते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो। ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं रिवर ऑफ लाइफ। अब हर एक नदी, जिस भी, कहीं पे भी वो नदी हो, कहीं ना कहीं से शुरू होती है, राइट? कोई ना कोई ग्लेशियर से या किसी ना किसी बड़े तालाब से शुरू होती है वो नदी, और वो चल के मिल जाती है एक समुद्र में कहीं ना कहीं जाके। तो आप सोचिए, हम सबकी जिंदगी भी एक नदी है। हम कहीं से शुरू हुए थे, कहीं से हमारा ओरिजिन हुआ था, और हम कहीं जाके मिल जाएंगे। एक दिन हम एक समुद्र में मिल जाएंगे। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, वो समुद्र हमारा स्पिरिट वर्ल्ड है कि हम इस धरती से निकल के उस समुद्र में मिल जाएंगे। लेकिन उसमें अभी समय है, अभी हम कहीं अपने
नदी के बीच में है। तो जैसे गंगा का एग्जाम्पल ले लें हम, तो गंगा गंगोत्री से शुरू होके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो अब ऐसे ही हमारी जिंदगी को अभी हम सब मिलके अपनी अपनी जिंदगी विजुलाइज करेंगे या सोचेंगे उस बारे में कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, वेयर डिड वी स्टार्ट फ्रॉम। जहां से हम शुरू हुए थे तब से, जैसे हर नदी के साथ होता है, कभी नदी बहुत तेजी से बहती है, कभी एकदम स्लो हो जाती है, एकदम स्थिर हो जाती है। कई बार उसके बीच में बहुत सारे पत्थर आते हैं जिस वजह से उसका रास्ता बदल जाता है। कई बार डैम्स जो हमने ह्यूमंस ने बना दिए वो डैम्स आ जाते हैं जिससे वो नदी एकदम रुक ही जाती है। कुछ ना कुछ हर नदी के रास्ते में आता है जिस वजह से उसका रास्ता बदलता है, रुख बदलता है और स्पीड बदलती है। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं पूरी जिंदगी में जिससे हमारा रुख बदला लाइफ का, जिससे जिससे हमारी स्पीड बदली, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो अभी हम 5 मिनट लेंगे और अपने आप विजुलाइज करेंगे हमारी वो नदी, हमारी जिंदगी की नदी। जरूरी नहीं है कि आप अपनी शुरुआत अपने बचपन से, अपनी पैदाइश से ही सोचें। आप अपनी शुरुआत वहां से सोच सकते हैं जहां से आप चाहते हैं। शायद कोई एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ हो, आपको लगता है आपकी जिंदगी वहां से शुरू हुई थी, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। तो हम सब अपनी जिंदगी की नदी इमेजिन करेंगे अभी, और उसमें मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस नदी की इमेजिनेशन के साथ साथ मैं आपसे पूछते जाऊंगे। आपको मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन में ही सोचिए कि उसका आंसर क्या है। ठीक है? तो जब आपकी नदी शुरू हुई, आपकी जिंदगी शुरू हुई, कुछ ऐसे बेंड्स और टर्न्स आए होंगे, कुछ ऐसे रुख बदले होंगे आपकी जिंदगी में जिससे आपने जो सोचा था आप आज जहां होंगे वहां नहीं है, कहीं और है। तो क्या आप कुछ कुछ ऐसी जगह अपनी जिंदगी की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, याद कर सकते हैं जहां पे आपका रुख बदला आपकी जिंदगी का? कोई एक ऐसे इवेंट्स आप सोच सकते हैं जिससे आप आज जो हैं वो बने, जो आप हैं। अगर आप खुद को डिस्क्राइब करना चाहेंगे, जो मैंने आपको फॉर्म भेजा था, बहुत लोगों ने खुद को डिस्क्राइब किया था, तो वो क्या चीजें थी, वो क्या इवेंट्स थे आपकी जिंदगी में जो आपको आप बनाता है आज, जो आप हैं आज। वो क्या हुआ था आपकी जिंदगी में ऐसा? बहुत सारे इवेंट्स भी हो सकते हैं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में 4-5 इवेंट्स हैं जिस वजह से आज जो मैं हूं वो हूं, जहां हूं वहां हूं। कुछ ऐसे इवेंट्स या कुछ ऐसे हिस्से अपनी जिंदगी के आप नोटिस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां पे आपकी नदी बहुत तेजी और ताकत से बह रही थी, जहां पे आप में बहुत साहस था, कॉन्फिडेंस था, बहुत कुछ, चाहे कुछ अच्छा चल रहा हो या ना हो, आप में बहुत साहस था और आप बहुत तेजी से बह रहे थे वहां पे। कुछ ऐसे इवेंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपकी जिंदगी की नदी में कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको वो बनाया जो आज आप हैं? कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी मदद की हो बहुत, कुछ ऐसे लोग शायद उन्होंने मदद का उल्टा किया हो, आपको इतना हर्ट किया हो जिससे जिससे भी आप में वो आज साहस है, वो करेज है जो आप बन पाए, वो हैं आप। कुछ ऐसे लोग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी नदी के रास्ते में। और इस नदी के रास्ते में कुछ ऐसे लॉसेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ लोग आपने खोए। ऐसा हो ही नहीं सकता है मैम, हमने किसी को खोया होगा। हम सब ने किसी ना किसी को खोया है। जी, आधे तो ऐसे लोग हैं जो साथ देते हैं उम्र भर के लिए, जो आधे ऐसे तो जो कुछ लोग हैं जो उम्र भर के लिए साथ देते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं देते, कुछ लोग चले जाते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से।
हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं। देर बीच रास्ते में ही छोड़ते हैं। हम्म। ठीक है, 2 और क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए। जब ये हम अपनी जिंदगी की नदी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसे डीप मोमेंट्स थे पेन और सफरिंग के, जहां पे आपने सबसे ज्यादा, आज से पहले सबसे ज्यादा पेन और सफरिंग सही हो? कुछ आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इवेंट्स, आई एम श्योर आप सब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जो सबसे डीप पेन और सफरिंग था यस मैडम। आज से। हाँ मैम, मैं मतलब 2090s में मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, तो मेरे मतलब पूरे लेग्स पूरे डिफॉर्म हो गए थे। उस वजह से मैं चल नहीं पाता था, और उस टाइम पे करियर भी था, तो दोनों चीजें हैंडल करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद में मेरी 3 सर्जरी भी हुई, एंड देन उस टाइम पे एग्जाम था, मेरा प्रीलिम्स हुआ था, तो मुझे मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना था। तो मतलब बहुत मुश्किल था, सोता था उठता था पढ़ता था, सोता था उठता था पढ़ता था। मैंने 1 महीने तक मैं बाहर, रूम के बाहर भी नहीं निकला हूँ इस सिचुएशन में। लेकिन पेन था, पेन के साथ में लड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि विशाल, तेरी मंजिल एक कदम आगे है, तुझे हारना नहीं है। उस सिचुएशन में मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, मतलब उसकी वजह से। वाह विशाल, ये तो बहुत ही साहस की स्टोरी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो फाइनली इस जो जैसा विशाल ने अभी कहा हमारे साथ, इस एक्टिविटी का मतलब ही यही है, ये करने का, ये हम हर कुछ महीने में कर सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी की नदी को फिर से देखें एक बार, और वो मोमेंट्स आइडेंटिफाई करें जिसमें हमें बहुत पेन था, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ गए, फिर भी हम यहाँ पहुंच गए, और कुछ लोगों ने साथ दिया। बहुत अच्छी बात है, उन लोगों के लिए हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं। सबसे ज्यादा लेकिन किसने साथ दिया? कौन था हमारे साथ बचपन से अभी तक? कौन रहेगा बचपन से समुद्र में मिल जाने तक? हम खुद। और कोई हो ना हो, हम हमारे साथ हमेशा हैं। हर चीज जो हमारे साथ होती है, उससे हम खुद खुद लड़ते हैं, उससे हम खुद आगे निकलते हैं। ये अगर हम अपने आप को रिमाइंड कर सकें बार बार कि हमारे साथ पहले भी बहुत पेन और सफरिंग हो चुकी है, उसमें से भी हम निकल चुके हैं खुद से, तो हम आज भी आगे भी निकल जाएंगे, अभी कुछ भी चल रहा हो। तो अभी इस जो हमने ये एक्टिविटी की, इसमें से मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आप चैट पे लिख सकते हैं, आप अपने पेन एंड पेपर पे लिख सकते हैं, अपने आप को बस रिमाइंड कर सकते हैं इस चीज के बारे में। मैं चाहती हूँ आप 2 ऐसे लेसन्स आइडेंटिफाई करें, 2 चीजें जो आपने सीखी अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिससे आपने अपने बारे में कुछ नया सीखा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, शायद आपको उससे समझ आए थोड़ा क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, मेरी लाइफ में भी मैंने बहुत सारे नेगेटिव इवेंट्स सहे हैं, मल्टीपल केसेस ऑफ चीटिंग, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। बहुत लोगों ने मुझ पे चीट किया है, बहुत मतलब 2-3 लोगों ने मुझ पे चीट किया है। फाइनेंशियल लॉसेस मैंने बहुत सहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हुआ है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन आज जब मैं अपनी नदी को पीछे फिर से मुड़ के देखती हूँ, तब मुझे लगता है कि 2 चीजें जो मैंने अपने बारे में सीखी वो ये हैं कि एक, मेरा फेथ नहीं हिलता, खुद में जो विश्वास है वो नहीं हिलता। शायद मैं उस समय बहुत ज्यादा टूट जाती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज, वो कहीं ना कहीं वो छोटी सी एक आवाज मेरे मन में बनी रहती है कि जो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मैं कर लूंगी, मैं ढूंढ लूंगी कुछ तो रास्ता, और मैं कर लूंगी। और दूसरा, रेजिलियंस। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ, मुझे सच बताऊं तो आगे जीने का भी मन नहीं था। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि हफ्तों तक मैंने ऐसा सोचा है कि कैसे ये जिंदगी बस खत्म हो जाए। लेकिन वहां से मैं जब आज मुड़ के देखती हूँ, एक चीज जो मैंने सीखी अपने बारे में वो है रेजिलियंस। लेकिन रेजिलियंस मतलब कि डटे रहना, कुछ भी होता रहे, मैं इसमें डटे रहूंगी।
तो ऐसे आप क्या दो लेसन्स, दो सीख अपने बारे में क्या सीखा आपने अपनी नदी को इमेजिन करके, वो आप अपने लिए लिखिए। आप चैट में लिखना चाहते हैं वहां पे लिखिए। 2 चीजें क्या सीखी आपने? कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। अपने बारे में 2 चीजें क्या सीखी अपनी जिंदगी को देखते हुए आपने? So, okay, nobody's going. Hi, my name is Rachit. I'll share my experience. So the two things that I've learned about myself, मैंने मेरे बारे में जो सीखा है कि I don't give up easily because of all the experiences that I've gone through in my life. So I'm very determined person as well. तो अगर मैंने कोई चीज को, अगर मेरे को कुछ कोई लक्ष्य या कोई चीज हासिल करनी है तो फिर मैं उसमें सब कुछ लगा दूंगा टू मेक श्योर आई अटेन व्हाट आई वांट टू अचीव और आई वांट टू learn out of it or things like that. So that's my take on it. Thank you. वाह, डिटर्मिनेशन। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत ही अच्छे लेसन है ये। और सोनिया और जारा ने भी यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया चैट में भी। सोनिया ने कहा है कि नॉट टू बी इमोशनल एंड जजमेंटल, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ब्यूटिफुल सोनिया, बहुत ही अच्छा लिखा है। जारा ने लिखा है इनर वॉइस दैट आई कैन डू इट, दैट आई कैन बेयर दिस पेन, हैव द थ्रस्ट होल्ड टू बेयर दिस। ओके। विशाल ने लिखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा है उन्होंने और हारना नहीं है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। यही चीजें हमें बस रिमाइंड करते रहनी है जब भी हमारी जिंदगी में कठिनाइयां आए कि हमारे पास ये लेसन्स हमेशा हैं। तो इसके बाद हम 2 और चीजें लिखेंगे, वो है 2 ऐसे स्ट्रेंथ्स। हमारे स्ट्रेंथ या टैलेंट्स क्या हैं जो हमें यूनिक बनाते हैं, जो हमारी नदी से आ रहे हैं, हमारी जिंदगी से आ रहे हैं। स्ट्रेंथ क्या है? तो मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मुझे अपना स्ट्रेंथ लगता है रिसोर्सफुलनेस। मतलब चाहे मुझे कुछ नहीं भी आता हो, मुझे पता है कि मैं किसी ना किसी को ढूंढ लूंगी, कहीं ना कहीं से ढूंढ के उस चीज का सल्यूशन निकाल लूंगी। तो मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है रिसोर्सफुलनेस। कि जब वो बात आई थी कि मैं अपना बिजनेस ऑलमोस्ट खो बैठी थी, तब भी मैंने 2-3-4 लोगों से बात की और वो रिसोर्सेज ढूंढ ली कि मैं अपना बिजनेस कैसे बचा सकती हूँ। ऐसे ही बहुत कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में जिसमें और लोगों से बात करके या इंटरनेट पे पढ़ के मैंने वो रिसोर्सेज ढूंढ ली। तो मेरी स्ट्रेंथ है रिसोर्सफुलनेस। ऐसे आप भी बताइए मुझे, आपको क्या लगता है आपकी स्ट्रेंथ या टैलेंट है जो आपको आप बनाता है? So hi Rachit here again. तो अगर मुझे मेरा शेयर करना है तो for me see what I really believe in and my life experience has taught me this कि strength lies in adversity. So I have gone through a lot of difficult moments that makes me more stronger and stronger for the future difficult moments to come. I can face it in a much better way now because it आदत सी हो गई है. That would be one of my this thing. One thing similar like yours is resourcefulness. I try to, I'll get connected somewhere or somewhere or learn something and बाकी का वो, like बस वो एक राह चाहिए. एक बार वो राह मिल गई then I can figure my way out. तो वही है. That's what I can also connect with it. और वो राह भी शायद हमारी रिसोर्सफुलनेस से ही आती है। अभी हमें शायद ना दिख रही हो वो राह, लेकिन इधर उधर हम रिसोर्सेज कलेक्ट करने की कोशिश करें, लोगों से बात करने की, नेटवर्क करने की कोशिश करें, तो वो राह भी दिख जाती है। क्योंकि जब हमें ये याद है कि हमारे पास डिटर्मिनेशन है और रिसोर्सफुलनेस है, तो हम रुकेंगे तो नहीं। राइट रचित? Yeah, true. All Yes, right. I agree on that fact, Ayushi. Like I also always try to keep myself. विजय आप म्यूट हो गए।
Hello. हाँ जी। Yeah, agree to your point, Ayushi. Like मैं भी बहुत ज़्यादा like podcast and all देखती रहती हूँ positive content. So even I am into something like in low situation, but वो जो positive बातें जो सुनी है, जो देखी है, जो लोगों को देखा है, वो मुझे always motivate करते हैं to come out of those situations. That is beautiful. Please continue doing that. Yeah, thank you. And you are one of them. So Oh, I'm following you since very long, like oh, since lockdown. thank you. Thank you. I didn't know that. Thank you. हाँ जी। तो हम सब अभी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे हैं इतना जल्दी, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी कोई 2 स्ट्रेंथ या टैलेंट अपने पास हमेशा ध्यान में रखें, लिख के रखें या फिर किसी को बता के रखें। आपको ये याद रहना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, क्योंकि जब भी वो कठिनाई वाला समय आता है ना, जब हमें बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का, तभी हमें अपने लेसन्स, अपने स्ट्रेंथ्स रिमाइंड करने होते, तब सबसे ज्यादा करने होते हैं। इवन दो तब बिल्कुल मन नहीं करता, तब हमें सबसे ज्यादा ये रिमाइंड करना होता है कि हाँ, ये है मेरे पास और मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अब 2 फाइनल चीजें जो हम इस एक्सरसाइज में लिखने वाले हैं या बात करने वाले हैं, वो थोड़ा सा अब ऑनेस्ट भी हो जाते हैं अपने से। 2 एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, 2 ऐसी क्या चीजें हैं जो मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकती हूँ, ये सोचते हैं। ठीक है, मैं पहले जाती हूँ, मैं बताती हूँ मेरे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। पहला तो ये है कि मैं ना मेरे को टाइम मैनेजमेंट उतने अच्छे से नहीं आता है। मैं ओवरऑल सारे काम अपने खत्म कर लेती हूँ, लेकिन कई बार बहुत ही लास्ट मिनट पे करती हूँ, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। मुझे अगर कहीं 8 बजे पहुंचना होता है तो मैं 8 बजे तो तैयार हो रहे होते हूँ, ऐसा होता है। तो मुझे लगता है वो एक मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसमें मैं बहुत बेहतर हो सकती हूँ। तो इसके लिए मैं ऑनेस्ट हो रही हूँ अपने आप से, क्योंकि आप मुझे बताएं ना बताएं, खुद से ऑनेस्ट होना, खुद को सच बताना बहुत जरूरी है। तो मैं आज ये आउट लाउड खुद को सच बता रही हूँ कि बॉस, टाइम मैनेजमेंट अपना सुधारना पड़ेगा। तो ऐसे कोई 2 चीजें आप क्या सुधार सकते हैं खुद से, जो आप में है, जो आपको लगता है आप और बेटर कर सकते हैं। हेलो मैम। तो हाँ जी विशाल। हाँ मैम, मतलब मेरी मतलब एक वीकनेस भी है कि मतलब मैं भरोसा कर लेता हूँ कुछ ज्यादा ही मतलब लोगों को, और ऐसा लगता है कि यही इंसान अपने पास में है तो, लेकिन वही इंसान मुझे आखिरी में धोखा दे देता है, वो फिर फ्रेंड हो या फिर जो भी हो, एक्सरसाइज है। तो एक मेरी कमजोरी भी है, इसके वजह से मैं बहुत बार लड़ा भी हूँ इस चीज से, लेकिन हारा नहीं, मतलब उस टाइम को निकाल के और फिर बाद में धीरे धीरे करके अपने आप को जगह पे लाके और ट्रैक पे लेके आ जाता हूँ। तो ये एक मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं उसको अभी ये कर रहा हूँ, धीरे धीरे पहचान रहा हूँ कि लोग कैसे हैं, उनके साथ कैसा बिहेवियर करना है, ये चीजें सीख रहा हूँ। हम्म। भरोसा करना कुछ बुरी बात नहीं है विशाल, पता है, क्योंकि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, है ना, क्योंकि हम हम्म। किसी का दिल नहीं दुखाते जानबूझ के, या हम किसी को धोखा नहीं देते, इसलिए हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया से कि वो भी हमें धोखा नहीं देंगे। एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, राइट? लोग हमें धोखा दे बैठते हैं। तो ये कोई बुरी बात हम्म। नहीं है कि आप लोगों पे भरोसा करते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि आप कोशिश कर सकते हैं, या आप कोशिश कर सकते हैं कि कैसे आप उस हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स, कैसे हर चीज को आप तोल के समझें या डिसीजन लें कि क्या ये मेरे लिए सही है, इज दिस सर्विंग मी। ये अगर हम समझने लग जाएं तो शायद हम थोड़ा बेटर हो जाएंगे इस राह पे। लेकिन कभी भी इस चीज के लिए गिल्ट मत फील करिएगा या बुरा मत फील करिएगा कि आप लोगों पे भरोसा करते हैं। जस्ट शोज कि आप किसी को धोखा नहीं देंगे, इसीलिए आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही। हम्म। तो 2 एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, मैं वीकनेसेस नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वीकनेस, जब हम किसी चीज को वीकनेस बोल देते हैं ना, तो हम उसे बस लेके बैठ जाते हैं कि ये मेरी वीकनेस है। हम बोल रहे हैं एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कहाँ है जहां पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
यही जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अगर मैं बोलूं कि टाइम मैनेजमेंट मेरी वीकनेस है, कहीं ना कहीं मैंने अपने दिमाग को बता दिया कि ये मेरी वीकनेस है, अब मैं इसे नहीं बदल सकती, मैं ऐसी ही हूं। इसीलिए मैं उसे बोल रही हूँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर ये डिफरेंस है। आज आप, अगर आप मुझसे शेयर नहीं भी करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज ये आइडेंटिफाई करें दो ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पे हम खुद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, खुद अपने अपने पास है वो चॉइस इम्प्रूवमेंट लाने की। ठीक है, Can तो I speak? हेलो मैम। यस प्लीज जारा, जारा राइट, लाइक Yes, it's me. यस। Hello. So nice to hear you. Actually, मैम मेरी जो थोड़ी सी ना एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसमें ये है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंक कर लेती हूँ चीज़ों को, और थोड़ा सा ये है कि उसके अंदर इमोशनल अटैचमेंट आ जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा भी यही सिस्टम है कि मैं डेडलाइंस फॉलो अप नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा मुश्किल। डेडलाइन फॉलो अप नहीं कर पाती, बहुत मुश्किल हो जाती है टाइम को मैनेज कर पाना, बट स्टिल मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा हेलो बिल्कुल। मैम। हेलो, हेलो, हु स्पीकिंग, आई कांट सी। हाशिम हियर। हाशिम, यस हाशिम। यस मैम। मैम मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेडिकेट नहीं हो पाता हूँ किसी भी काम को लेके, तो मुझे खुद को थोड़ा और डेडिकेट करना होगा। और एक और मेरे साथ इश्यू है कि मैं किसी भी टास्क को लेके एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन रख लेता हूँ, तो मुझे वो नहीं रखना चाहिए। तो ये मुझे दो ऐसा लगते हैं जहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हम्म, ठीक है, मेक सेंस। तो हाशिम, जारा, एवरीवन हु शेयर्ड, एक काम करते हैं, आप ये ना, ये जो अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आपने मेरे साथ शेयर किए हैं, इसको हम लास्ट में Q&A में डिस्कस करेंगे। 10 मिनट हमें Q&A भी करेंगे। अगर आपके पास इन सब चीजों के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आई वुड लव टू शेयर टूल्स विथ यू, जिससे ये चीजें आप इन पे काम कर सकते हैं। हूँ। हेलो मैम। हेलो योगेश, आप बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? हाँ, मैं बताना चाहता था मेरे इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कोप। हाँ जी। हाँ, पहला है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, और अगर डिसीजन लिया तो उस पे एक्शन नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है मेरा। और दूसरा, मैं कम्युनिकेशन पे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन है मेरा अच्छा, लेकिन जैसे मार्केट डिमांड करता है वैसे नहीं, तो मैं स्पेशली इंग्लिश में वो इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और लेकिन प्रायोरिटी डिसीजन और उस पे एक्शन लेना है, तो मेरे से होता ही नहीं है। हाँ, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, टोटली 100% ब्लाइंड हूँ। ठीक तो है, ये दो पॉइंट है। यस। थैंक यू, आपने मेरे साथ शेयर किया। मेरे पास आपके लिए ना एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपने अब 2 एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई कर लिए अपने। अब आपका काम आज से ये है कि रोज खुद को छोटे छोटे टास्क्स देना, ताकि आप ये वाले एरियाज में एक्चुअली इम्प्रूव कर पाए कि आप कर क्या रहे हैं, ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट आने लग जाए आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो ये हम आगे अभी थोड़ा सा वील वर्क ऑन दिस ऑल्सो फॉर एवरीबडी। ओके, तो एक मेरे पास फाइनल सेगमेंट में हम अब जा रहे हैं। इससे पहले ना मेरे पास एक स्टोरी है जो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मुझे लगा मैं आपको भी बताऊंगी। तो मंक्स समझते हैं आप, वो जो लोग साधना करने जाते हैं, मेडिटेशन करने जाते हैं, मंक जो बन जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सा मंक स्कूल होता है जहाँ पे बहुत सारे यंग मंक्स, बहुत सारे यंग साधु जाते हैं साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए, और वहीं रहते हैं वो। तो उनको अलग अलग रोज काम होते हैं, किसी को सफाई करनी है, खाना बनाना है, सेवा करनी है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन उसके अलावा हर किसी को काफी देर तक, घंटों तक मेडिटेशन भी करनी होती है, अपनी साधना भी करनी होती है। तो सब बैठ के साथ में सुबह शाम को मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट लोग यूजुअली कैसे करते हैं? अपनी आंखें बंद करके अपने मन में जाके बस कुछ थॉट्स ना आए, कुछ डिस्टरबेंस ना हो, ऐसे वो मेडिटेट किया जाता है। तो एक यंग मंक होता है, वो पहले मेडिटेट करने की कोशिश करता है सबके साथ। वो बहुत इरिटेट होने लग जाता है, एंग्री होने लग जाता है
नहीं होता उससे मेडिटेट। कुछ दिन बाद वो अपने टीचर के पास, अपने मेंटर के पास जाता है और बोलता है मैं मेडिटेट नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं होगा ये। तो मेंटर उससे पूछते हैं कि क्यों, क्या हो गया? तो वो बोलता है कि मैं बहुत एंग्री हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेट करने बैठता हूँ कोई ना कोई आसपास या तो चल रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, तो मैं मेडिटेट ही नहीं कर पाता। तो द टीचर आस्क्स हिम वन क्वेश्चन कि तुम एक्चुअली एंग्री किस चीज पे हो, व्हाट आर यू एंग्री अबाउट? फिर वो मंक को उस समय समझ में नहीं आता है। फिर वो क्या करता है, उन जहाँ पे उनका वो स्कूल होता है वहां पे एक नदी, एक लेक होती है, उस लेक के किनारे जाके बैठ के मेडिटेट करने लग जाता है। तो पहले उसे लगता है कि शायद ये अच्छा डिसीजन होगा, यहाँ पे दूसरे लोग चल फिर नहीं रहे हैं। वहां पे वो मेडिटेट करने लग जाता है, लेकिन वहां पे पक्षियों की आवाज आ रही होती है, रोज लेक के पानी की आवाज आ रही होती है, कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है आसपास, जानवरों की आवाज आ रही होती है। फिर वो इरिटेट और गुस्से में रहने लग जाता है, अरे यहाँ पे पक्षी भी चुप नहीं हो रहे, यहाँ पे कैसे मेडिटेट करूं मैं? फिर उसे एक नाव दिखती है बंधी हुई, वो नाव लेता है और नाव से वो लेक के बीचों बीच जाके, जहां पे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, वहां पे मेडिटेट करने लग जाता है। 3 दिन वो वहां मेडिटेट करता है बहुत खुशी खुशी कि अरे वाह, यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ मेडिटेट किया जाए। वहां पे करने लगता है। फिर एक दिन, चौथे दिन मेडिटेट कर रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती है और एकदम से उसे आवाज आने लग जाती है पानी के बहुत तेज हिलने की। फिर वो आंख खोल के देखता है, एक दूसरी नाव उसकी तरफ बढ़ रही होती है तेजी से। तो वो एकदम से चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, अरे अपनी नाव को हटाओ, मेरी नाव में आके लग जाएगी ये नाव, हटाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम? बहुत बहुत गुस्सा हो जाता है वो, बहुत ज्यादा। और फिर फाइनली वो नाव एक्चुअली उसकी नाव में आके लग जाती है, टकरा जाती है। और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अरे लेक के बीच में भी मुझे कोई अकेला नहीं छोड़ रहा है, मैं कैसे मेडिटेट करूं? फिर वो फाइनली इतने गुस्से में उठ के खड़ा होके देखता है कि कौन चला रहा है ये नाव, कौन बेवकूफ है जिसने ये नाव आके मेरी नाव में टकरा दी। वो उठ के देखता है, वो नाव में कोई भी नहीं होता है। वो एक ऐसी लूज नाव होती है जो पानी के बहाव से आ गई होती है इसके पास। तब एकदम से जब वो देखता है उस नाव में कोई भी नहीं है, वो किसी और पे गुस्सा ही नहीं कर सकता, अब किसको सुनाएगा, किस पे चिल्लाएगा? तब उसका गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है और तब उसे अपने मेंटर का क्वेश्चन याद आता है कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू एंग्री अबाउट? तो इस स्टोरी से जो मुझे लेसन मिला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे, कि बुरी चीजें और बाहर के डिस्टर्बेंसेस तो चलते रहेंगे लाइफ में। जो मैंने पहले पेन और सफरिंग वाली बात की थी, पेन हम सबकी जिंदगी में आएगा, लेकिन हमारा वो पेन और गहरा हो जाता है और सफरिंग और लंबी हो जाती है जब हम, जिस तरीके से हम उन इवेंट्स पे रिएक्ट करते हैं। तो वो मंक भी एक्चुअली अपने रिएक्शन से ज्यादा एंग्री था, इरिटेटेड था, रादर देन द डिस्टर्बेंसेस। क्योंकि असली मेडिटेशन का तो मतलब है कि आप कितने भी भीड़ वाली जगह पे, चाहे एक ट्रेन स्टेशन भी हो, आप अपने ध्यान में अपनी शांति में जा सकते हो। तो वो एक्चुअली उन चीजों पे एंगर अपना दिखा रहा था जो उसके बाहर थी, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी इरिटेशन उसके अंदर थी। वो हमेशा से डे 1 से उसके कंट्रोल में थी। तो इसी पे बेस्ड एक और लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे साथ में। हम सबकी जिंदगी में एक सर्कल होता है, एक सर्कल होता है जिसको हम कहते हैं अपना सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ कंट्रोल। और उस सर्कल से बाहर जितनी भी चीजें हैं वो है आउटसाइड आवर कंट्रोल। हम सबकी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिनके पास अभी पेन पेपर है, जो लिख सकते हैं, प्लीज ये चीज लिखिए या फिर अपने मन में ध्यान में सोचिए। एक सर्कल बनाइए, एक राउंड गोला बनाइए और उसके अंदर वो चीजें डालिए, वो चीजें लिखिए जो एक्चुअली आपके कंट्रोल में हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो बहुत सिंपल चीजें, जैसे मैं दिन भर क्या खा पी रही हूँ, कितना खा पी रही हूँ। चलो, क्या तो कोई और बना रहा है मेरे लिए खाना, तो कितना मैं खा रही हूँ, कितनी रोटियां खा रही हूँ, मेरे कंट्रोल में है कि नहीं? सबसे सिंपल चीज।
और अगर अभी मैं इस वर्कशॉप में क्या डिलीवर कर रही हूँ, आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वर्कशॉप में, वो भी मेरे कंट्रोल में है ना? मैं आज सुबह उठ के कैसा फील कर रही हूँ, वो भी मेरे कंट्रोल में है। क्या मैं अपने आप को बता रही हूँ कैसा मैं फील कर सकती हूँ? तो हमारे कंट्रोल में क्या क्या है? हमारे कंट्रोल में हमारे सारे एक्शंस हैं। जो भी एक्शंस हम लेते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में। हमें ऐसा लगता है कि हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हमारी थिंकिंग हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई आके आज हमें कुछ बुरा बोल देगा तो हम दुखी हो जाएंगे, लेकिन वो दुख लेना या रखना हमारे कंट्रोल में है। हमारे एक्शंस और फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में है। हमारा रूटीन हमारे कंट्रोल में है। हम जो बोल रहे हैं, हमारी भाषा, मतलब जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे शब्द हमारे कंट्रोल में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। अब एक्शंस को भी और छोटी छोटी चीजें भी आप लिख सकते हैं कि आज आप कितना खाना खाएंगे, कितने जॉब्स में अप्लाई करेंगे, किससे नेटवर्क करके बात करेंगे, किससे कुछ सीखेंगे। ये सारी चीजें आप छोटे छोटे एक्शंस भी लिख सकते हैं। जैसे योगेश ने कहा, आइडियाज हैं उनके पास लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाते। तो योगेश, एक्शन भी आप ही के कंट्रोल में है ना, आपके हाथ में ही है वो करना। अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है, आपने कुछ निश्चित किया है कि मैं ये तो करूंगा, तो वो करना ना करना आपके हाथ में है। अब कैसे करना, वो आप किसी की मदद ले सकते हैं। तो ये सब हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर आता है। और सर्कल ऑफ कंट्रोल के बाहर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं इस वर्कशॉप में डिलीवर क्या कर रही हूँ वो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन आप सीख क्या रहे हैं मुझसे, आपको ये वर्कशॉप अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो नहीं है। मैं खुद को यही आज सुबह यही बताने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा ना आपको कि मैं कल से नर्वस फील कर रही थी इस वर्कशॉप के बारे में, कि कैसी होगी, लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव एडिशन होगा कि नहीं। फिर आज सुबह नाश्ता करते टाइम मुझे ये चीज याद में आई। मैं अपने भाई से बात कर रही थी इस बारे में, उसने मुझे रिमाइंड किया कि आपके कंट्रोल में तो सिर्फ वही है जो आप डिलीवर कर रहे हो, जो आपके पास टूल्स हैं। अब उनको पसंद आए ना आए वो तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो इस बारे में नर्वस होके या चिंता करके क्या फायदा। और उससे मुझे याद आया कि हाँ, क्या फायदा कि आपको जो मैं बोल रही हूँ वो पसंद आए ना आए, जब वो मेरे हाथ में ही नहीं है तो मुझे उसके बारे में चिंता करके क्या फायदा। मैं तो बस अपना कर्म कर सकती हूँ। इसीलिए अभी हम ये ध्यान में लाएंगे अपने कि हमारे कंट्रोल में क्या क्या है और हमारे कंट्रोल से बाहर क्या क्या है। लोगों के रिएक्शंस, दूसरे लोगों के एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम 10 जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, अपना सीवी बेटर कर सकते हैं, अपने इंटरव्यूज में प्रैक्टिस और अच्छे करके दे सकते हैं, लेकिन वो हमें नौकरी मिले ना मिले हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपने पिछले इंटरव्यू से सीख सकते हैं कि पिछले इंटरव्यू में ये गलतियां मैंने की, उससे मैं ये बेटर बदलाव ला सकती हूँ इस इंटरव्यू में, वो मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अगली नौकरी मुझे मिले ना मिले, नॉट इन माय कंट्रोल। ठीक है, तो आपको सर्कल ऑफ कंट्रोल एंड आउटसाइडर कंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दिस, अगर हम अपने आप को ये रिमाइंड करते रहे ना, सर्कल ऑफ कंट्रोल एंड आउटसाइडर कंट्रोल बहुत बहुत पावरफुल टूल है। जब भी हमारा मन खराब होता है, नेगेटिव फील करना शुरू करते हैं हम, तब हम अपने आप को रिमाइंड कर लें, ये जिस चीज के बारे में नेगेटिव फील कर रही हूं मैं, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ ये मेरे कंट्रोल में है तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ इसे बदलने के लिए। अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है तो फिर इसके बारे में दुखी होके स्ट्रेस करके क्या फायदा हो रहा है मुझे। सिंपल 2 क्वेश्चंस, व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली, मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में, और अगर नहीं है तो इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है। हाउ इज दिस नेगेटिव फीलिंग सर्विंग मी। क्योंकि हम सब जो भी करते हैं अपनी जिंदगी में अपने लिए ही करते हैं ना, ताकि हमारी जिंदगी बेटर हो सके। आज आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, मैं ये वर्कशॉप डिलीवर कर रही हूँ ताकि हमें खुद पर्सनली कुछ गेन हो सके, कुछ फायदा हो सके, हम अपने आप को सर्व कर सकें। तो अगर हम सब कुछ अपने आप को सर्व करने के लिए कर रहे हैं
तो फिर हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी चैलेंज कर सकते हैं कि ये मुझे कैसे सर्व कर रहा है, ये नेगेटिव इमोशंस मुझे क्या फायदा दे रहा है, राइट? To keep reminding yourself of everything that's in your control and not in your control, and then ask yourself the question, what can I do and how is this serving me? ये दो questions अगर आप लिख लें या कहीं पे याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा. तो finally, to conclude this workshop, I have two simple things. एक है आपके लिए homework जो आप आज से हर हफ्ते कर सकते हैं. वंस अ वीक करें तो बहुत ही अच्छा होगा. वंस अ वीक से ज्यादा करना है तो वो भी कर सकते हैं. हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हमारी काबिलियत से. और हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास काबिलियत है? जब हम देखते हैं पीछे मुड़ के कि हमने ये सब अचीव किया हुआ है अभी तक. तो इसीलिए हम हफ्ते में एक बार मिनिमम, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार एक छोटी सी एक्सरसाइज खुद के साथ करेंगे. हम इस, जैसे आज संडे है, तो आने वाले हफ्ते के लिए हम अपने लिए एकदम छोटे छोटे गोल्स सेट करेंगे. बहुत ही छोटे छोटे गोल्स. बहुत बड़े गोल्स सेट करने की जरूरत नहीं है, एकदम छोटे छोटे गोल्स. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक छोटा गोल होगा कि मैं अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में इस वर्कशॉप के बारे में आज बताऊं लोगों को, या कल बताऊं कि मैंने ये वर्कशॉप की और मुझे बहुत अच्छा लगा. तो ये एक बहुत ही छोटा सा टास्क है जो मैं कर सकती हूँ, जो मेरे कंट्रोल में है. और जब मैं कर दूंगी तो मुझे अच्छा फील भी होगा कि मैंने ये सोचा था अपने लिए करने के लिए और मैंने कर दिया. तो एक छोटा सा गोल बनाया मैंने और वो कर दिया. तो हर हफ्ते आप 4 या 5 बहुत छोटे गोल्स अपने लिए सेट करेंगे. और फिर अगले हफ्ते, मतलब आज अगर संडे को आपने सेट किए, तो सैटरडे, अगले सैटरडे आप बैठ के देखेंगे मैंने क्या क्या अचीव किया, और अपने अचीवमेंट कहीं लिखेंगे या अपने आप को रिमाइंड करेंगे कि मुझे ये प्रोफेशनल नेटवर्क में अपने शेयर करना था, जैसे लिंक्डइन पे शेयर करना था, मैंने कर दिया. मुझे यहाँ आज इस नई जगह पे जाना था, मैंने कर दिया. मुझे दो नए लोगों से बात करनी थी, मैंने कर ली. जैसे जैसे आप वो अचीवमेंट अपने आप को रिमाइंड करते जाएंगे, वैसे वैसे मैं गारंटी देती हूँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा. वो एक के ऊपर एक बिल्ड होते जाएगा. अगर आपको मैथ याद है, नाइन्थ स्टैंडर्ड की शायद, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ा था. तो कॉन्फिडेंस भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है. हम छोटा सा अचीवमेंट करते हैं, उसके ऊपर एक और अचीवमेंट स्टैक होता है, उसके ऊपर और होता है और होता है. ऐसे करते करते हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है. लेकिन अचीवमेंट्स कहाँ से आएंगे जब तक हम खुद के लिए वो गोल्स सेट ही ना करें. एवरीथिंग कम्स डाउन टू एक्शन. हमारे एक्शन, हमारे कर्म. हम कर्म करते रहेंगे और आउटकम से डिटैच्ड रहेंगे. आउटकम पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे अपने, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा. और आई कैन गारंटी आपके आउटकम भी बेटर होते जाएंगे. क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन होती है. बाहर की दुनिया वही होती है जो हमारे अंदर चल रहा होता है. कई लोग आप शायद जानते होंगे जिनकी जिंदगी में उनके पास सब है, पैसा है, नौकरी है, परिवार है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं. जानते हैं आप कोई ऐसे लोग कि नहीं? हम सब एक ना एक इंसान को तो ऐसे जानते हैं. वो कंप्लेन करते, उनके पास सब होते हुए भी वो बोलते यार ये अच्छा नहीं चल रहा, वो अच्छा नहीं चल रहा. क्यों? क्योंकि उनके अंदर की दुनिया अच्छी नहीं चल रही, इसलिए उनको बाहर की दुनिया भी ऐसी दिख रही है. और ऐसे ही दूसरी साइड भी है, कुछ लोग जिनकी जिंदगी में इतने स्ट्रगल्स भरे हैं, इतने चैलेंजेस भरे हैं, लेकिन फिर भी उनसे आप जब भी मिलो, जब भी बात करो, वो खुशी रहते हैं. उनकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है, वो हमेशा हंसते खेलते रहते हैं. क्यों? और वो हर चीज में पॉजिटिव भी देख पाते हैं. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर की दुनिया अच्छी चल रही होती है, इसलिए बाहर की भी अच्छी लगती है. तो हमारा बस एक ही मकसद है, हम अपने अंदर की दुनिया बेटर कैसे करें ताकि हमें जो बाहर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो भी मिलती रहें. अपॉर्चुनिटीज हम सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन वो हम देख पाएं या ना देख पाएं डिपेंड करता है हमारे अंदर क्या चल रहा है. बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा. मेरे साथ ऐसे कम से कम 2 या 3 बार हुआ है मेरे बिजनेस में
जिसमें मेरा रेवेन्यू बहुत ज्यादा होते हुए से एकदम जीरो हो गया। मैंने अपने क्लाइंट्स खो दिए हैं, सब कुछ। और जितने दिन मैं उस स्ट्रेस में रही, मेरे को एक नया क्लाइंट नहीं मिला। जिस दिन मैंने डिसाइड किया अपनी टीम के साथ कि देखो, कुछ भी हो, हमें पता है हमारे पास स्किल्स हैं, अपन अच्छा काम करेंगे, हम क्लाइंट्स नए ढूंढेंगे, उसी दिन से एकदम मैजिक की तरह उसी दिन से कोई ना कोई मेरे पास आने लग गया कहीं से कि आयुषी, आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू बी योर क्लाइंट। अपॉर्चुनिटीज आने लग गई, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज हमेशा से वहां थी, मुझे बस दिख नहीं रही थी। क्योंकि हमारी जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे सामने एक फॉग की तरह, एक क्लाउड्स की तरह आ जाती है, जिससे हमें आगे का क्लियर राह नहीं दिखती। तो दैट वाज इट। आई रियली रियली होप जो भी आज मैंने बात की उसमें आपको कुछ कुछ तो ऐसा मिला हो जिससे आप अपने लाइफ में कुछ एक छोटा सा पॉजिटिव बदलाव तो ला पाए। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं पर्सनल चैलेंजेस को लेके, तो आई एम हियर, लेट्स टॉक अबाउट इट। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आई एम हियर, आई वुड लव टू आंसर। वी हैव 10 more minutes. हेलो मैम, हाँ जी योगेश। योगेश बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक्शन के बारे में बात करी ना, तो हम्म पहले बात तो पहले मेरा ऐसा था, अभी मैं इस पे थोड़ा मेरा नजरिया चेंज कर रहा हूँ कि हम्म हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, परफेक्ट नहीं होता है ना? सही बात है। बराबर। तो मेरा यही था कि मैं सब काम नहीं कर सकता हूँ, और हम कितना भी कर ले, प्रॉब्लम तो है और डिसेबिलिटी तो है। बीइंग अ टोटली ब्लाइंड, सबसे पहला चैलेंज रहता है कि लर्निंग, और सबसे बड़ा यही चैलेंज रहता है। तो ये बात है, और जब कुछ करने जाता हूँ ना, तो मैं एक्सेसिबिलिटी टेस्टर हूँ। हम्म एक शॉर्ट में बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। हम है हम्म ना, प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, एंड्रॉइड ऐप्स और हम्म सॉफ्टवेयर और फिजिकल इन्वायरमेंट भी। तो इसमें मैं जानता हूँ कि हर टाइप के डिसेबल पर्सन को कैसे डाले जाते हैं। तो इसमें सच में ब्लाइंड को थोड़े से ज्यादा ही प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि हम हम्म सीखते तो विजन से और हेयरिंग से। तो मेन प्राइमरी है विजन। तो सीखने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और दूसरा बात है, अगर सीख नहीं सकते तो काम कर नहीं सकते। हाँ, हम्म कर भी सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया कि पूरा काम तो नहीं कर सकते। मैंने इनिशिएट किया था, 67 स्टूडेंट थे मेरे क्लासरूम में। मैंने बोला, अरे भाई, सब काम एक बंदा नहीं कर सकता है। 67 आएंगे, सब साथ में मिलेंगे, काम करेंगे। लेकिन उनको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं था। उनको क्या, मेरे टीचर को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। मेरे पेरेंट्स भी, हाँ, पेरेंट्स तो अभी मान जाते हैं क्योंकि उनका अनुभव है। तो हम्म उनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। फिर मैं ऐसे केस में मैं क्या करूं? और मैं और हाँ, मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मेरे खुद के ऊपर लेता हूँ। मैं अगर जो भी मेरी परिस्थिति, वो मेरे खुद के वजह से डिसीजन हम्म डिसीजन इम्पोर्टेंट है ना, हम चॉइस क्या करते हैं वो। हम्म तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं खुद पे ले रहा हूँ, उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम्म अगर हम दुनिया में रह रहे हैं, तो शरीर, समाज और संयोग, ये तो हम्म तीनों को तो मिलाना पड़ेगा ना। तो फिर हम्म मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तो फिर ऐसे केस में क्या करूं? और मैं बीइंग डिसेबल, डिस्क्रिमिनेशन है, ये हम्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे 3 साल का अनुभव है, फिर भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ जॉब मिलने में एक अच्छा। और वहीं पे मैं मेरा साइटेड दोस्त को देखता हूँ, अगर वो और मैं सेम कंपनी में अप्लाई करता है, तो एटलीस्ट उसको कॉल तभी आता है, लेकिन मुझे कॉल भी नहीं आता है। हालांकि मुझे उससे ज्यादा नॉलेज है। तो हम्म ऐसे केस में क्या करे यार मैम? हाँ, और एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। दर्द है लेकिन दुख नहीं है। तो हम्म सिर्फ मैंने, सभी डिसेबल मेरे भाई बहन, सब में एक बहुत ही ज्यादा पेशेंस है, मुझे पता है। हम हम्म लोग हार मारने वालों में नहीं है। लेकिन यार, एक एक वक्त तो आता है ना, सवाल पूछना पड़ता है खुद से कि अरे, ये क्या हो रहा है और मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो क्या तरीका रहना चाहिए मेरा? हाँ, फिर पैसे दे के हो सकता है, लेकिन पैसा तो मेरे पास नहीं, तो फिर मैं कहाँ से दूं पैसा? डेलीगेट डेलीगेट दूसरों से काम करके लेना। तो मेरे तो पास आपके लिए 2-3 सजेशंस हैं योगेश। थैंक यू सो मच, पहले तो आपने मेरे साथ शेयर किया। हम्म, अम, एक तो आंसर आपने जो बोला उसी में ही है। आपने कहा हर कोई इंसान हर कुछ नहीं कर सकता, ये सच बात है। हाँ,
कई हाँ चीजें जो आप कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि हम सब यस स्किल्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। यस तो सबसे पहले आज से ही आप उन चीजों पे ज्यादा समय दें और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं जो चीजें आप अच्छी करते हैं नेचुरली, ठीक है। जो आपके स्किल्स हैं उनमें आप और बेहतर कैसे हो सकते हैं उस पे फोकस करना शुरू करिए, ठीक है। क्या मैं इसमें और बेहतर हो सकता हूँ, क्या मैं एक अपने शहर का बोलो मैम, एक मिनट। हाँ जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं please। मैं मास्टर हूँ मेरे फील्ड में, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में। 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 सर्टिफिकेट है, और मैंने मेरी डेडी लाइफ ही योगेश गॉट म्यूटेड। योगेश आप म्यूट हो गए। सॉरी मैम, बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन क्या है कि मेरे फील्ड के बारे में ना अवेयरनेस ही नहीं है। हर आईटी कंपनी में और हर डेवलपर, डिजाइनर और प्रोडक्ट ऑनर को इसकी जानकारी होना जरूरी है, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो रीच ही नहीं कर पा रहे। तो फिर ऐसे केस में क्या करूँ? और फिर अगर मेरा नॉलेज है और वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो फिर तो ये बहुत ही डिमोटिवेट हो जाता है ना। मैं फ्री भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियली तो पुअर है, थिंकिंग भी पुअर है लोगों की, तो क्या करे? नहीं आई अंडरस्टैंड, मेरे को समझ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। तो आप तो स्किल की तो बात है ही नहीं, आपने कहा आप ऑलरेडी मास्टर हैं इसमें, तो बहुत हाँ अच्छी। यस फिर जो मेरा दूसरा सजेशन है, आपके पास स्किल है और कुछ लोगों को ये स्किल चाहिए, इसके बीच में बस ब्रिज मिसिंग है ना। वो आप उन लोगों को जिनको आपकी जरूरत है और आपकी स्किल को बीच में ब्रिज कैसे किया जाए उसका हमें बस फिगर आउट करना है कैसे होगा। और उसका ये है, सबसे सिंपल तरीका ये है नेटवर्क करना, ठीक है। आप जैसे आज जितने लोग यहाँ पे आए हैं, सारथी में लोग हैं, मैं हूँ, अदिति है मेरी जो कलीग हैं जिन्होंने ये पूरा वर्कशॉप मेरे को हेल्प किया बनाने में। आप हमें हमें रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप अ, किसी को भी, जो यहाँ पे टीम है, सारथी की टीम भी है, श्रुति है यहाँ पे, उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। शायद वो किसी को जानते हो जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग चाह रहा है अपनी कंपनी में, राइट। उन्हें बस वो लोग नहीं मिल रहे जो आपके लेवल के स्किल्स हैं जिनके पास, क्योंकि लोग हैं, जरूरत है दुनिया में इस चीज की। और आप जैसे है जिनके पास स्किल है, बस बीच में हमें उन्हें जोड़ना है। वो जोड़ने के लिए आपका ये मकसद होना चाहिए अभी नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स में, कि जितने लोगों से आप बात कर सके उतने लोगों से बात करें, उन्हें अपने सर्टिफिकेशंस भेजें, उन्हें बताएं कि आप एग्जैक्टली करते क्या है, डिटेल में आपकी स्किल क्या है, ठीक है। जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, क्योंकि हम भी वही करते हैं ना। मैं अगर लाइफ कोच हूं तो मैं लोगों, अगर मेरे को चाहिए कि और लोग मुझसे लाइफ कोचिंग लें, तो मैं जितने लोगों से मिलती हूँ या अपने लिंक्डइन पे लोगों को बताती रहती हूँ ना कि मैंने ये काम किया और मैं इसमें इसमें मास्टर हूँ, ये मेरी स्किल है, तभी और लोग मेरे बारे में जान के मेरे पास आते हैं। तो हमें बस ये वाला ब्रिज करना है गैप। तो आप आज ही अपने आप के लिए एक छोटा सा गोल ये सेट करें कि नए लोगों से बात करना शुरू करें, उन्हें बताएं। यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर कोई और है जो योगेश की इसमें सहायता कर सकता है, प्लीज करिए, क्योंकि क्योंकि हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम सबके पास एक और चीज पता है क्या है हमारी सांसों के अलावा? कम्युनिटी। कम्युनिटी सबसे बड़ी बात तो है। हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसमें कम्युनिटी इज सच अ बिग थिंग, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। शायद जो मुझे चाहिए आपके पास हो, आपको चाहिए वो मेरे पास हो, राइट। तो योगेश आप यस अपने गोल सेट करें कि एटलीस्ट 3 या 4 नए लोगों से आप बात करेंगे हर हफ्ते, 3 नए लोगों से बात करेंगे हर हफ्ते। शायद कोई किसी ना किसी को जानता हो जो आपको वो अपॉर्चुनिटी दिला पाए, ताकि आपको इसकी जॉब मिल पाए या कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल पाए, ठीक है। क्या तरीका है और कैसे जुड़ सकते हैं नए लोगों से? शॉर्ट में अगर बता आप सके तो। आपकी कोई मदद करता है आपका, आपके सर्टिफिकेशंस मैनेज करने में या आपका नहीं, सीवी? मैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, मैं सब कर अच्छा, सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ तो बहुत ही बढ़िया हेलो बात है। तो फिर आप हेलो मैम, सॉरी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। तो कैन आई गिव एम सम सजेशन फॉर योगेश? प्लीज प्लीज हाशिम, यस। या योगेश, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने आईवे से कांटेक्ट किया है?
आईवे? जी हाँ, आईवे एक संस्था है जो ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड की मदद हाँ, ये करती है। हेल्पलाइन डेस्क है ना, हाँ जहाँ से हाँ हम जानकारी प्राप्त कर जी सकते हैं। जी, आपने कांटेक्ट किया उन लोगों से? जी हाँ, से अच्छा। हाँ, मैं हाँ। ये जानना चाह रहा था कि वो आप एक बार उनकी हेल्पलाइन पे बात करके जो आपकी प्रॉब्लम है उनको डिटेल बता दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे एनजीओज भी उनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो वहां से मे बी आपको कोई लीड मिल जाए। हाँ, मुझे पता है और मैं कनेक्ट भी हूँ उनसे, लेकिन हाँ, कुछ फीडबैक नहीं आता है। ठीक है, कोई आता बात है। नहीं योगेश। थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन हाशिम। आप कन्वेंशनल तरीके भी यूज कर सकते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, जैसे कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जितने भी है ना, आप अगर टाइप कर सकते हैं अच्छे से, आप सब कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, आप श्रुति को रीच आउट कर सकते हैं, अदिति को रीच आउट कर सकते हैं, और उन्हें अपने सर्टिफिकेशंस, अपने अपने स्किल्स के बारे में भेजें। हाँ ठीक हाँ है, हाँ क्योंकि हाँ मेरी जो मैं काम करती हूँ इसके आउटसाइड ऑफ दीज वर्कशॉप्स ऑल्सो, मेरी भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो हमेशा तैयार रहती है लोगों को हेल्प करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिनकी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हैं, जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं। आप एक काम करिएगा, लिंक्डइन पे, अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट है, नहीं तो इंस्टाग्राम पे, नहीं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे रीच आउट जरूर करें। और हमें अपने सर्टिफिकेशंस भेजें, हमें अपने स्किल्स के बारे में अपना सीवी भेजें, ताकि हमें पता चल सके। और अगर लिंक्डइन पे नहीं भी भेजना है तो मुझे तो आप ईमेल जरूर कर दीजिएगा। आई वुड लव टू फाइंड आउट समथिंग, किसी तरीके से मैं आपकी मदद कर पाऊँ तो आई विल हेल्प आउट फॉर श्योर। जी हाँ हाँ। मैं 1 मिनट में मेरा प्लान बताता हूँ। जैसे कि अब मैंने ना जोमेटो ऐप है ना, मैंने सोचा कि चलो मेरे पास लोग नहीं आ रहे तो मैं मेरा काम दिखाता हूँ। मार्केटिंग है ना, यू हैव टू सेल योर सेल। तो जैसे कि जोमेटो ऐप है, उसमें लॉगिन में कुछ इश्यू थे तो मैंने वो फाइंड करे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन, मैंने वो इशू रेज किए, उसका जो प्रॉब्लम है वो बताया, लेकिन वही कम्युनिकेशन तो एक इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि अरे लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे हम डाल रहे हैं, तो फिर प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है। और लेकिन मैंने वो डिसाइड किया है कि नहीं, हाँ करूंगा। और लैंग्वेज फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ इंग्लिश ही रखूंगा। और मेरा इंग्लिश आपको बताया ना मैंने, तो मैंने क्या सोचा कि जितने भी मैंने इशू आइडेंटिफाई किए, अब जैसे एक गो आई वीवो जो वेबसाइट है ना, वीवो, वो मैंने टेस्ट करी तो उसमें पूरा इनएक्सेसिबल वेबसाइट था वो। यानी कि कोई ब्लाइंड बंदा आसानी से फ्लाइट बुक ही नहीं कर सकता वहां पे। तो ये मैंने इशू रेस किया। अब मैंने वो रेस किया, लेकिन मैंने कहीं पे डाला नहीं वो। तो ये जो एक प्रोफेशनलिज्म आता है या फिर कम्युनिकेशन आता है, इसे कैसे बताए। और इंग्लिश इज इक्वल टू लैंग्वेज परसेप्शन है ना। लेकिन योगेश, तो रिटन इंग्लिश तो बहुत ही आसान है करना। आप जो भी कहना चाहते हैं, चाहे आपको बहुत अच्छी इंग्लिश लिखना नहीं भी आता है, अब इतने सारे एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए रीवर्ड कर देंगे। हाँ आप हाँ चैट जीपीटी पे जाके लिखिए आपको जो लिखना है, और उसे बोलिए कि इसको कैन यू रीवर्ड दिस, कैन यू ओके। रीवर्ड दिस इनटू समथिंग प्रोफेशनल, और वो आप ईमेल करिए लोगों को, वो आप पोस्ट करिए लिंक्डइन पे। हाँ हाँ, नहीं मैं अभी ये करने ही वाला हूँ। एक हाँ जी, परफेक्शन के चक्कर में, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, आई बिलीव। वो सब तो पता है, आपको मुझे सारे लगता है कि अक्षर मुझे पता है थोड़ा सा ये। परफेक्ट करना है, तो उस वजह से डिले होता है, लेकिन मैं करूंगा। और थैंक यू मैम, मुझे एटलीस्ट आपके वजह से एक स्पार्क मिला है, जिससे मेरा डायनामा चल पाए और मेरा इंजन चल सके। तो आज ही इंजन मैं चालू करना है, आज ही, पर आज से ही। हाँ, मैं तो मेरा तो ऐसा है जैसे कि आस्किंग टू फिश हाउ डू यू स्विम, तो मेरा एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का वैसा है कि तुम कितना टेस्टिंग करते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच योगेश, थैंक यू। कोई सॉरी फॉर अदर्स, मैंने अगर ज्यादा टाइम लिया होगा मैम का बात और नहीं, कोई आपके बात नहीं। किसी का। आपकी वजह से हम सब बहुत ही इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी हाँ, थैंक यू मैम। हाँ Yeah, जी, I think it's a deaf person who wants to talk, so हाँ, शुभाशीष, एंड yeah, then we are gonna go to Biswamon. yeah. Okay, okay. 1 second.
Hello, ma'am. Yeah, okay. Hello, ma'am. She has, Shubhashish? yeah, so he's saying that locally, he's only working as a deaf person in his company. Most of them like try to give more tasks to him, जो वो कर नहीं पा रहा, and then when he tries to communicate with his team, ideas बहुत सारे हैं उनके पास, but when he's trying to communicate, वो लोग ना, they're trying to like keep him away, they're trying to keep him away because he is impaired, like especially impaired person. And yeah, like in MNC companies when he's working, they are telling like, I'm sorry, you're deaf, right? So we have to reject, your skill set is matching, but you're deaf. So that's where he finds a lot of ends. So even if he's having a hearing aid, he is still not getting that opportunity and all. So how does he work on these? He's asking. Okay. Thank you for your question, Shubhashish. आपसे मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं? क्या आप चेंज करने का सोच रहे हैं अपनी जॉब? यस, ओके. तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ कंपनीज जो हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल एंड अदर काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट्स ऑल्सो के लिए बहुत ही एक्सेप्टिंग एंड ओपन है, जिनके परसेंटेज, उनके एम्प्लॉयबिलिटी परसेंटेज में ये लिखा होता है. तो अगर आई एम नॉट श्योर अगर आपने वो लिस्ट देखी है कि नहीं, लेकिन ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू कनेक्ट विथ पीपल जो आपको बता सकें कि कौन सी ऐसी एमएनसीज हैं हु आर ओपन टू एम्प्लॉइंग, हु आर वेरी इंक्लूसिव. इंक्लूसिविटी उनमें बहुत है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनीज के अब पॉलिसीज में ये चीज आ चुकी है कि दे हैव टू हायर इंक्लूसिवली. तो आप वहां पे पहले अप्लाई करना शुरू करें, तो वो ये वाला तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो हटा ही देंगे. वो आपको मना कर ही नहीं सकते उस लिए, राइट? क्योंकि उनकी तो पॉलिसी में ही है. तो जब भी आप अप्लाई करिए तो आप पॉलिसीज, हायरिंग पॉलिसीज पहले हर एक कंपनी की पढ़ लें और वहां पे अप्लाई करना शुरू करें. दैट इज वन. सेकंड, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन एन एबिलिटी एंड नॉट हैविंग दैट एबिलिटी. मतलब अगर आपकी स्किल जो है और वो मेरी स्किल है तो हम में कुछ फर्क नहीं है. एंड दैट हैज टू बी कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेटेड टू द HRs एंड टू द हायरिंग पीपल कि हे, आई नो आई मे नॉट बी एबल टू हियर दैट वेल, लेकिन मेरी वो कैपेबिलिटी है, मेरी वो एबिलिटी है कि मैं काम अपना बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ, मेरे पास आइडियाज बहुत बढ़िया हैं. तो as long as you are confident in your skill set, people cannot act differently with you. And this applies to everybody. Obviously, I cannot understand what it feels like to not have hearing, but I can tell you one thing that applies to all of us. That is, कि people can only treat us how we allow them to treat us. हम बाउंड्रीज हमेशा सेट कर सकते हैं कि व्हाट इज ओके एंड व्हाट इज नॉट ओके विथ मी. तो ट्राई टू सी हाउ पीपल आर ट्रीटिंग यू एंड सी are you somewhere allowing them to do that to you. People will only treat you how you allow them to treat you. ठीक है? And we are in 2024. Pretty much everyone, every company at least should have interpreters, should have inclusivity policies. अगर नहीं कर रहे हैं तो it's their that company's fault. They are behind, not us. It's nothing wrong on our part. ठीक है? Maybe you can advocate for that. Maybe you can push that. कि inclusivity. I hope that helps. I hope I was able to answer. Excuse me, ma'am. Ma'am, I think he just has one more question. Okay. Modi, ma'am, I am Vishwaman here. Give me 2 minutes, Bishan. Okay. so he's like, how do I stop this negative energy whenever the HR talks about his skill set? How does he positively react on that? How you feel about it is on you, but you can actually set a boundary with the HR that, hey,
I am very confident in my ability to your skill in my skill set. I am extremely confident in my skill set only because I have hearing impairment. That is something that shouldn't stop me from getting more opportunities. मतलब you have to communicate this. आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि मेरे पास वो स्किल सेट है जो एक person with hearing ability के पास भी है, or maybe even better. I don't know how your skill set it is, लेकिन you have to confidently communicate that this is my skill set and I can deliver whatever is asked for me in the project. So it is up to, and there are so many different ways to communicate. You want to share your ideas, maybe you can write them down and share. Maybe you can mail it and send it to all the leadership, right? Say that, tell them that it's just a mode of communication that is changing. Maybe I'm not talking and listening well, but I can write really well. I can share the ideas really well. Emails तो हर companies में लोग पढ़ते ही हैं. And most of the MNCs work on emails, especially work from home में. Yeah, he's saying thank you. It cleared his idea. Thank you. हाँ जी, बिस्वामन, please. हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे बहुत संघर्ष झेलने पड़े और उसके बाद मेरे को एक जॉब मिला जिसके लिए मुझे रिलोकेट होना पड़ रहा है बैंगलोर में, ठीक है। तो मोबिलिटी मेरा रिस्ट्रिक्टेड है। मैं चाह रहा था कि अगर मुझे वर्क फ्रॉम होम कुछ अगर छोटा मोटा मिलता जो कॉलिंग बेस्ड हो, बिकॉज आई एम ए ब्लाइंड पर्सन, so I'm looking for a better opportunity in CRM profile and calling profile jobs. So I'm not getting it from my remote location. After a long struggle, one company has offered me, but I have to relocate there, which is impossible because since from 2021, my vision has started deteriorating. So my mobility has been restricted. So what can I do and what you would like to suggest? How shall I get the job so that I can meet my family expenses? Because we couples are physically handicapped, physically challenged. So this is my question. So switching the job or finding the job is an urgent need, is it? Biswaman? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And when you say relocation is impossible, is it completely impossible, or is something can be worked out? Can someone from your family go with you? नो मैम, जैसे मेरे फैमिली में तो ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो गुजर गए और कोई देखने वाला भी नहीं है। और मेरी मिसेस तो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड है, वो भी उतना सक्षम नहीं है। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि अगर वर्क फ्रॉम होम कॉलिंग बेस्ड अगर कुछ मिले तो मैं आराम से कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 4 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। Okay. On the level of what you can do yourself, I do have the same suggestion अभी के लिए तो जो मैंने योगेश को भी दिया था, that you have to continue networking. आप LinkedIn पे या फिर कहीं पे just talk to more people, क्योंकि आपके पास जो skill set है और आपके पास जो experience है उसके लिए jobs हैं वहाँ पे। लेकिन अभी immediately I don't have an answer for this, but if someone else here can help out Biswamon, that will be great. अगर आप किसी को जानते हैं who might have a calling job or who might have a CRM job that Biswamon can work for, please help him out. Otherwise, what I would say is कि you give yourself that challenge कि अगले 15 दिन में, अगले 20 दिन में you reach out to as many companies as possible, as many individuals as possible. जितने भी remote jobs हैं. Aditi, are you here? Can you please help me with this?
Hmm. Aditi, can I please ask you to unmute yourself and I had a question. मैडम एक क्वेश्चन हम भी पूछना चाह रहे थे। हाँ, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं बस ये वाला आंसर कर दूं सुनील, फिर So, Aditi, I'm here. I won't be able to आपने switch कुछ on दिन my पहले video. that's okay. कुछ दिन पहले आपने शेयर किया था कि Yeah. कितनी सारी रिमोट जॉब्स पॉसिबल हैं, राइट? Yes, absolutely. प्लीज बिस्मामॉन को बताएंगे कि वो कैसे ढूंढ सकते हैं। यू आर द करियर स्पेशलिस्ट, तो यू वुड Yeah. नो। So, Biswamohan, there are a list of remote job platforms. If you could please share your email ID on this web chat, or I'll share my email ID. You could share your resume with me. तो रिमोट जॉब प्लेटफॉर्म्स इंडिया में भी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। 100% रिमोट जॉब्स इसमें रहते हैं। दूसरी चीज, आप लिंक्डइन पे जाके अगर रिमोट वाले पार्ट पे फिल्टर करेंगे तो आपको वहां से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है, आप गूगल जॉब्स पे भी ढूंढ सकते हैं। सो बेसिकली ऑल द जॉब प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, ऑल ऑफ देम हैव रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज लिस्टेड। दूसरा चीज इज डेडिकेटेड रिमोट जॉब प्लेटफॉर्म्स है जो सिर्फ ये अपॉर्चुनिटीज शेयर करते हैं। ये एक तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि हर एक चाहे वो मिड साइज फर्म्स हो, जितनी भी रिटेल सेक्शन में होती हैं, कम्युनिकेशन में होती हैं, आपकी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, काफी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है जिसमें सीआरएम सेक्शन तो डेफिनेटली होता ही है, और आज तक वो 70% रिमोट ही है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको इजीली मिल सकती हैं। मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ बाय इजीली, एटलीस्ट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप उनको कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो आपने आपका ईमेल आईडी शेयर कर दिया है, मैं आपके साथ वो लिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म शेयर कर दूंगी, एंड अकॉर्डिंगली आपको अगर और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। बट दीज आर द टॉप 3 ways टू फाइंड देम। डेडिकेटेड रिमोट जॉब प्लेटफॉर्म्स जो ऑलरेडी जॉब प्लेटफॉर्म्स है, मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता होगा, बट आप इंडस्ट्री वाइज भी ढूंढेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ओके मैम। But I will Thank reach out to you. I have your email ID. I'll definitely reach out to you. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू Thank अदिति। you. वील टेक वन मोर क्वेश्चन क्योंकि हम काफी आगे निकल गए हैं हमारे टाइम स्लॉट से। और मैम मैं मेरा भी क्वेश्चन है, प्लीज मैम, मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, मैडम पूजा ने पहले बोला था। मैडम एक क्वेश्चन पूछना था उन्हें। पूजा फिर सुनील विल डू। जी हाँ पूजा, आपका क्या क्वेश्चन था? मैडम, ये हम पूछना चाह रहे थे कि देखिए हम भी एक गांव से ही बिलोंग करते हैं, और एक्चुअली हम कहीं चाह रहे थे कि एमएनसी कंपनी में हम जॉब करें, लेकिन वैसा अपॉर्चुनिटी हमको मिल नहीं पा रहा है, और मेरे पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। तो वैसा जहाँ ऐसा आप बता सकते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है डिजेबल पीपल के लिए। वैसे मैं तो वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हूँ, मेरा लेफ्ट लेग है, मैं रिलोकेट भी हो सकता है एनीवेयर इन इंडिया। तो मैं वैसा चाह रहा था कि वैसे हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहाँ जॉब मिले, तो इस प्रकार से कोई है ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अ, अपना करियर बना सके एमएनसी कंपनी में। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हूँ कि मैं मुझे किसी तरह से मिल जाए एमएनसी कंपनी में जॉब, तो मैं पूरी लगन के साथ वहाँ जॉब करना चाह रहा था, लेकिन वैसा मुझे मिल ही नहीं रहा है। सुनील जी, मैं आयुषी के बिहाफ पे बोलती हूँ। आप अपना रेज्यूमे मुझे, मैं एक ईमेल आईडी भेज रही हूँ, उस पे भेज दीजिए, तो मैं आपको उस चीज में हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है? तो कौन सा ग्रुप है मैडम? एक ग्रुप जो भी है? ये नहीं, ये देखिए, मैंने अभी आपको चैट पे एक ईमेल आईडी भेजी है, आप उस पे अपना रेज्यूमे भेजिए, मैं आपको आगे फिर उस चीज में डायरेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है? मैडम प्लीज एक मोबाइल नंबर आपको बता दीजिए ना, उसमें रिज्यूम वगैरह सारा ये हो सकता था। इसमें देखिए दूसरा ग्रुप में जुड़ा हुआ, किसी तरह से आया है इसमें लिंक, तो उसी के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ, फिर ये पता नहीं चल पाता है। तो एक नहीं, देखिए, मोबाइल मैंने चैट में अभी आपको एक ईमेल आईडी भेजी है, aspire2progress@gmail.com, आप उस पे भेज सकते हैं। ठीक है? And I think guys, you have been got this link of the workshop from Sarathi's side, and Sarathi has an inclusion transformation platform where you all could register, update your profile, look for options, job options as well as upskilling. So, yeah, we all have a wish to get jobs in MNCs, but first thing is we need to get ourselves upskills to that level. Okay? So I Yes. think we could take these questions after the workshops. Please register on the platform, and you can just reach out to the Sarthi team to us directly. आयुषी मैम,
हाँ जी, आप जॉब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस नहीं है मैम, यू कैन मेरा डायरेक्ट। एक क्वेश्चन है मैम, प्लीज आपका पास मैं करना चाहती हाँ हूँ। हाँ मैम मैं 12th कंप्लीट हूँ और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर कंप्लीट हूँ, बट थर्ड ईयर 1 ईयर के उससे मेरा नहीं हुआ है मैम। तो इसीलिए मैम मुझे ना कुछ जॉब ढूंढने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैम। ये सजेस्ट मैं आपके पास मांगना चाहती हूँ कि मैम मैं स्पेनिश इंग्लिश में A1 A2 कंप्लीट किया है मैम। क्या मुझे पढ़ाई करने के लिए बहुत इंटरेस्ट है मैम, मैं क्या पढ़ाई करूंगी, मेरा प्लीज एक सजेस्ट कीजिए मैम आप। आप पूजा जरूरी नहीं है डिग्री कंप्लीट करना, आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं अगर आपको पढ़ाई मैम करना। शॉर्ट टर्म कोर्स किया है मैम, सारुति से बीपीओ केपीओ ऐसा कोर्स किया है, तभी भी मुझे जॉब नहीं मिला है मैम। इसीलिए ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी हो गया है मैम। तो इसीलिए मैम कैसा पढ़ाई करूंगी ये आपको पास सजेस्ट करना पूछना चाहती हूँ मैम। आप पार्ट टाइम वर्क लेके पार्ट टाइम कॉलेज भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मैम कहाँ पे पार्ट टाइम काम हम लोगों को मिलेगा मैम? जॉब रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आई थिंक सारथी टीम विल बी एबल टू आंसर बेटर, जैसा कि अभी उन्होंने बताया। Yeah, we can take it, after this हाँ call or maybe tomorrow, from Monday, yeah. हाँ जी प्लीज। मैम आप कुछ पढ़ाई करने के लिए हमें सजेस्ट करेगा मैम प्लीज मैम? ये पढ़ाई करो, जैसे स्पेनिश इंग्लिश करने के लिए जो बहुत ऑप्शन मिलेगा, ऐसा कुछ मैम आपका नॉलेज है मैम? बहुत सारे स्किल्स हैं, आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्किल डेवलप करना चाहती है। मल्टीपल स्किल्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश मैम, जैसे मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, ब्लाइंड हूँ मैम, जैसे मैम टॉकिंग पावर मैम इम्प्रूव करना चाहती हूँ मैम। तो आप स्पोकन इंग्लिश बेटर कर सकते हैं, और स्पोकन इंग्लिश बेटर करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कोई कोर्स करना। नो बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश आपकी बेटर करती हैं। थैंक यू मैम। हाँ जी, और जॉब से रिलेटेड प्लीज आप सारथी से पूछ लीजिए, सारथी टीम से, दे विल बी एबल टू टेल यू बेटर। थैंक यू मैम। हाँ जी, सो वन लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक नीलेश हैज रेज्ड हिज हैंड। नीलेश, आप आपके पास कोई क्वेश्चन है? Hello, good morning, ma'am. Sorry, good afternoon. गुड आफ्टरनून। Ma'am, recently I work in DTDC Courier as a franchisee in charge. But 2 years ago, I was an accident. I'm in bed rest now and healing process is continuing. So in this situation, how to find job opportunities work from home? वर्क फ्रॉम होम, अभी जैसे आदिति ने बताया, आपके जो भी स्किल्स हैं उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ रिमोट जॉब्स ही ऑफर करते हैं। तो जो ऑब्वियसली मैं आपकी स्किल्स उतने अच्छे से नहीं जानती हूँ अभी, अपने स्किल्स के हिसाब से आप गूगल करिए रिमोट जॉब प्लेटफॉर्म्स और वहां पे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। रिमोट जॉब्स आपको लिंक्डइन पे भी मिल जाएंगे और उसके डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स भी हैं। नीलेश, मैम, बहुत से रिमोट जॉब तो ऑफर हुए थे, लेकिन कई लोगों ने महीना 2 महीने काम कराया और फिर बाद में बंद कर दिया। तो इस तरह का हम कैसे चीज करें? हम वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो बीच में अगर छोड़ के चले जाएंगे तो फिर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स। आपको कंपनी की क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी है, कितने सालों से चल रही है, क्योंकि कोई अच्छी डिसेंटली एस्टैब्लिश्ड कंपनी आपको ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाएगी, या इट वोंट चीट ऑन यू। तो आप पहले कंपनी की क्रेडिबिलिटी के साथ ही अपना समय देना शुरू करें उनको। पहले आप अपनी उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी समझिए। ओके मैम, तो इसमें अभी थोड़ा मेरा स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, थोड़ा इसी रिलेटेड इस सिचुएशन के लिए। इस सिचुएशन में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि बहुत आपके, स्पेशली बिकॉज आपके सर्कमस्टांसेस 2 साल पहले चेंज हो गए, राइट? एंड उसके बाद से आई कैन इमेजिन बहुत कठिनाइयां रही होंगी। आप सिर्फ अपने आप को भी ये रिमाइंड कर सकते हैं कि आज से आगे बढ़ने के लिए आपके पास आपके कंट्रोल में क्या है, ठीक है? और 2 प्रैक्टिसेस हैं, जो एक हमने सर्कल ऑफ कंट्रोल किया था, अगर आप यहाँ पे थे तब भी, तो सर्कल हमारे कंट्रोल में क्या क्या है उस चीज को हमें रिमाइंड करना, और दूसरा
सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हमें यूनिवर्स से भी कनेक्ट कराती है और हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी लाती है, वो है प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो हमारे पास है, क्या हम उसके लिए धन्य हैं कि नहीं? प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, अगर हम रोज 1 या 2 छोटी चीजें भी वो देख सकें, चाहे कितना भी कठिन दिन चल रहा हो, 1 या 2 छोटी चीजें जो आज दिन में हुई, जिसने मुझे एक स्माइल दी या जिससे मैं खुश हूं, जिससे मैं धन्य हूं, दैट्स ऑल। आप एक रोज अपनी एक ये प्रैक्टिस तो शुरू कर दीजिए कि 3 चीजें आप लिस्ट करिए, 2 या 3 चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं आज। आज ऐसा क्या हुआ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं? बहुत छोटी मैम चीज भी उसकी जरूरी नहीं है बड़ी हो। मैम I was now in 40s, so to create get any problem to get the job? नहीं, अगर आपके स्किल्स हैं और आप रिमोटली काम कर रहे हैं तो एज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Okay, thank you. Thank you, Nilesh. Okay, thank you everybody who stuck around till now. Thank you so much. आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और I really hope that this made a difference, some difference in your life today. I'm extremely grateful for you. Thank you, Ayushi. Thank you, ma'am. Thank you, Really- Ayushi and Deepa. Thank you. Thank you so much, Deepa. This has been a pleasure and honor working with you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Same here. Thank you. It was nice being in the session. Thank you. All right. Have a great Sunday. Bye bye.